Dear student, I am going to start lesson 2. The name of the lesson is A New Idea of Good Manners. इसमें टू फ्रेंड के बारे में बताया है कि कैसे वो एक जब अपने स्कूल खुल जाते हैं एक लड़का आता है अशोक और वो उससे फ्रेंडशिप करते हैं और उसको अपना स्कूल दिखाते हैं। अब इसके बारे में आगे और हम जानेंगे। इसको मैं आप ध्यान से रीड करेंगे। द टाउन हाई स्कूल हैज़ जस्ट ओपन this morning, after the long summer vacation, Ravi and Anand are in the 7th class. Ravi spent his vacation at a village. Anand spent almost all of it in the town. He went away for only a few days to see his uncle. They have just met a new boy in the school. His name is Ashok. He has just joined the school and is almost a stranger to them. लंबी छुट्टियों के बाद टाउन के हाई स्कूल खुले थे। रवि और आनंद जो कि क्लास 7th में है। रवि ने अपनी छुट्टियां एक गांव में बिताई और आनंद ने टाउन में ही अपना समय बिताया। वह कुछ दिनों के लिए अपने अंकल के यहाँ गया था। उन्हें स्कूल में जैसे ही एक नया लड़का मिला जिसका नाम अशोक था। उसने अभी स्कूल ज्वाइन किया था और वो सभी में अजनबी भी था। रवि टू अशोक, आई हैव नेवर सीन यू here before. I believe you are a stranger to this school. Are you a new boy? Ashok, yes, I am. I am joining class 7. Which class are you in? Ravi, I am in class 7 too. My name is Ravi and this is my friend Anand. Anand, I am very glad to see you. Ashok, how are you? Ashok, I am fine, thank you. But excuse me, are you also in the 7th class? Anand, yes. Ravi, I am sorry, I forgot to tell you that. Have you had a look at our school? अशोक, रवि ने अशोक से कहा, मैंने पहले कभी तुम्हें यहाँ नहीं देखा। इस स्कूल के लिए तुम बिल्कुल अजनबी हो। क्या तुम यहाँ नए हो? अशोक ने कहा, हाँ, मैं क्लास 7 में ज्वाइन कर रहा हूँ। मैं भी क्लास 7 में हूँ। मेरा नाम रवि है और मेरा फ्रेंड आनंद है। आनंद, मुझे तुमसे मिलकर अच्छा लगा। अशोक ने कहा, तुम कैसे हो? फिर अशोक ने कहा, मैं अच्छा हूँ, लेकिन क्या तुम क्लास 7th में हो? आनंद ने कहा, हाँ। फिर रवि ने कहा, मुझे माफ़ करना, मैं कहना भूल गया था। अशोक, क्या तुमने स्कूल देख लिया है? अशोक, नो आई हैवंट येट बट आई वुड वेरी मच लाइक टू. Shall we go to the library and have a look at the books? Anand, yes, why not? The three boys go to the library. Anand, ours is not a very big school and so this isn't very big library. Ravi, but it is a good one. It has many interesting storybooks. Ashok, are there some place to? Ravi, yes, there are. I read one last year but I didn't like it. It was a bit dull. Ashok, do you like to watch a play? Ravi, I very much like to watch plays, but I can't stand reading them. Storybooks are never dull. Ashok, but would you like to act in a play? Ravi, not very much, but Anand would love to. Anand, yes, I like acting very much. I, I am always ready to act if I am asked to. There isn't anything dull about acting. Those big fat books are a bit dull, perhaps, but acting is not. अशोक ने कहा, नहीं, अभी तक नहीं। क्या हम लाइब्रेरी चलें और बुक्स देखें? आनंद ने कहा, हाँ, क्यों नहीं। तीनों लाइब्रेरी जाते हैं। आनंद ने कहा, ज़्यादा बड़ा नहीं है हमारा स्कूल, इसलिए लाइब्रेरी भी बड़ी नहीं है। फिर रवि ने कहा, लेकिन यह अच्छा है, यहाँ कई इंटरेस्टिंग बुक्स भी है। फिर अशोक ने कहा, क्या यहाँ कुछ नाटक की बुक्स है? रवि ने कहा, हाँ है, मैंने पिछले साल ही पढ़ी है, मुझे अच्छी नहीं लगी। अशोक ने कहा, क्या तुम्हें नाटक देखना पसंद है? रवि ने कहा, मुझे खेलना बहुत पसंद है, लेकिन उन मैं उनको पढ़ने के लिए खड़ा नहीं रह सकता हूँ। स्टोरी बुक कभी डल नहीं होती है। अशोक ने कहा, क्या तुम नाटक में एक्ट करना पसंद करोगे? रवि ने कहा, इतना नहीं, लेकिन आनंद को ये पसंद है। फिर आनंद ने कहा, हाँ, मुझे एक्टिंग बहुत पसंद है, मैं हमेशा एक्टिंग के लिए तैयार रहता हूँ। कुछ डल नहीं है एक्टिंग के बारे में। शायद बड़ी बड़ी बुक्स डल होती है लेकिन एक्टिंग नहीं होती। अशोक, what are they?
Ravi, they are dictionaries. May I ask you a question? Ashok, yes, do ask. Ravi, do you know how to use a dictionary? Ashok, my grandfather taught me how to use a dictionary 2 years ago. I have been using one ever since. Anand, that's good. When I read a book, I sometimes want to look up the meaning of new words in the dictionary, but very often I feel lazy and decide not to. Ravi, but suppose you are writing and don't know how to spell a word, would you look it up then? Anand, then I would have to look the word up. If I spell word wrongly, my writing will be full of mistake. I don't like it. Ravi, you are right. We don't like to make mistake. अशोक, वे क्या हैं? अशोक ने कहा वे क्या हैं? फिर रवि ने कहा वे डिक्शनरीज है। हो सकता है मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूं। अशोक ने कहा हाँ पूछो। फिर रवि ने कहा क्या तुम्हें पता है डिक्शनरी कैसे यूज़ करते हैं? फिर अशोक ने जवाब दिया मेरे ग्रैंडफादर ने मुझे सिखाया था कि 2 साल पहले डिक्शनरी कैसे यूज़ करते हैं। मैं एक ही यूज़ कर रहा हूँ। फिर आनंद ने कहा बहुत अच्छा। जब मैं एक बुक पढ़ता हूँ मैं डिक्शनरी में मीनिंग कभी कभी देखना पसंद करता हूँ, लेकिन अक्सर मुझे थकान सा लगता है। फिर रवि ने कहा लेकिन मानो हम कभी लिख रहे हो और तुमसे एक वर्ड की स्पेल पता नहीं चले, क्या तब तुम उसमें देखोगे? फिर आनंद ने कहा तब मैं वर्ड देखूंगा। यदि मेरी स्पेलिंग का वर्ड गलत होगा तो मेरी राइटिंग में बहुत मिस्टेक होगी तो मुझे यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। फिर रवि ने कहा तुम सही हो, हमें मिस्टेक पसंद नहीं है। अशोक, and we won't make mistake if we are careful. We mustn't make mistakes for two reasons. Firstly, it shows that we are lazy, and secondly, it is also bad manners. Anand, what have manner to do with making mistake? Ravi, perhaps Ashok is right. The most important thing about good manners is that they please people. Our mistake make readers unhappy. Anand, look, there is the headmaster. Headmaster, hello boys. How are you? Do you like your new school? Ashok, yes sir. I have met Anand and Ravi and they have been friendly. They have made me feel at home in a new place. They are taking me round the school. Headmaster, that's very fine. It, it's nice to be friendly to stranger. Where are you going next? Ravi, sir, we will show Ashok our science laboratory, and the school museum next. अशोक ने कहा अगर हम सावधानी से करें तो मिस्टेक नहीं होती है। दो कारणों से हमें मिस्टेक नहीं करनी चाहिए। पहला यह दिखाता है कि हम आलसी हैं और दूसरा हमारे बेड मैनर को शो करता है। रवि, शायद अशोक सही है। गुड मैनर के बारे में सबसे ज़रूरी चीज़ है यह। आनंद, देखो वहाँ हेडमास्टर हैं। फिर हेडमास्टर ने कहा हेलो बॉयज, तुम कैसे हो? क्या तुम्हें नया स्कूल पसंद है? अशोक ने कहा यस सर। मैं आनंद और रवि से मिला और वे फ्रेंड बन गए। नई जगह थी, उन्होंने मुझे घर जैसा अनुभव कराया। उन्होंने मुझे स्कूल के चारों ओर घुमाया भी है। हेडमास्टर ने कहा ये बहुत अच्छा है, अजनबी के साथ दोस्ती, यह अच्छी बात है। अब तुम कहाँ जा रहे हो? फिर रवि ने कहा सर अगला हम अशोक को साइंस लेबोरेटरी और म्यूजियम दिखाएंगे। इस तरीके से वो फ्रेंड बन